Okay, so let's start. Previously, uh, we were talking about we are talking about uh, electric field intensities. If you remember, uh, so this is what we have so far. We studied the electric fields. You remember? Uh, we started from a charge separation, right? You remember that? We started from charge separation, and we said if we have charge separation, we have the electric field intensity. Remember that? Yes, sir. And then this electric field intensity has numerous forms. Like uh, it depends on the structure. So we saw E electric field intensity for line charge. We saw electric field intensity for um, Surface charge. we saw electric field intensity for surface charge, and we saw electric field intensity for volume Volume of charge. charge. Yeah. Okay, volume of charges. We saw all those three structures previously. And we also said if you have a positive charge or a negative charge, we have electric field around it. And this electric field we saw exists in the form of lines of forces, and they are the straight lines. These are the lines of forces. And then we concluded the Gauss law. We said that Right. these lines of forces which move, and that flow is called as flux, electric flux. We said that this electric flux is equal to the total charge enclosed in that structure. Enclosed. In that structure, we also extend this Gauss law in the form of electric field intensity. Then we saw that the divergence of D is equal to rho V. Divergence of D is equal to rho V. This was the first Maxwell Equation. Maxwell's equation. Okay. Uh, why we came here? Uh, because Maxwell was in point of view that the Gauss law or the Faraday's experiment, which is psi equals to Q, doesn't have enough information. Doesn't give you the enough information. So he put the Gauss law in the coordinate system. So when he put the Gauss law in the coordinate system, he ended up on his first Maxwell equation. Okay. So these were the things we found previously. And then we also concluded that if we have this say a sphere of charges where we have lot of charge, we concluded that this charge will exist only on the surface. There will be no charge inside the structure. The charge will exist only on the surface of the metallic structure, right? We call this a Van de Graaff. Okay. We said that if we have this charge, we have the electric field perpendicular to the surface in all possible directions. Okay, right? In all these directions. This was the electric field. Then we also saw that this electric field results in, if this electric field is extended, it results in, say this is point B, say this is somewhere point A. So because of this electric field, we have VA here and we have B. VB here. Okay. And
And because of this thing, because of the electric field, we have the voltage. So if this is Potential the, difference. yeah, if this is the distance between point A and B, so then electric field is, electric field is what? VB minus VA divided by D. Okay? Is this okay? Are you here? Yes, sir. Okay? And we also say Yes, sir. if if point B is at infinity, okay, then E equals to V divided by D. Okay, so we came to this question also. Okay, now importantly, what we saw, that if we have some positive charges, right, and we have some negative charges, say this is VA and say this is VB. So we have a potential difference V equals to VA minus VB. Okay. So now if I have an electron here, what will happen to the electron? The electron will move against the electric field. Okay. Electric field Yeah. And actually the field is doing work, and this work will be equals to how much? This work will be how much? Negative minus Q minus Q E integral dot dl, ds and the path is from A to B, and b. say, yeah, exactly. Okay, so this is the length, the separation between the two. Okay, so this is what we have so far. Okay, now we will focus here, that in presence, now the next chapter is in presence of E, electron moves. Okay, electron moves, and this constitutes current. So this chapter is about the flow of this electron, movement of this electron, so which constitutes a current. Okay, समझ आ रही है बात की? सो अभी हम क्या देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में जब मूव करता है. ओके, सो व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट थिंग इज we will look for wires. Okay, we will look for metallic wires. metallic wires को हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स, राइट. हम ये देखेंगे कि अगर हम इस वायर को हम बैटरी के साथ कनेक्ट करें, ऐसे शॉर्ट सी वायर बैटरी के साथ कभी भी कनेक्ट नहीं करनी, अदरवाइज आप शॉर्ट सर्किट कॉज करेंगे. ठीक है, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशनल पर्पस के लिए. ओके, लेट मी पुट अ रेजिस्टर हियर. ओके, लेट मी पुट अ रेजिस्टर हियर. So this is plus and this one is, so this side is plus and this side is minus. So what happens? We have lot of electric field inside, right? We have lot of electric field inside. अच्छा, अब होता क्या है, अगर ये हमारे पास क्या है, कॉपर है, तो कॉपर में क्या होते हैं? कॉपर में क्या होंगे?
कॉपर में क्या होंगे बताएं? फ्री इलेक्ट्रॉन सर। हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करेंगे, यस सर। और वो इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कहाँ से आनी है? सर वो जो हम वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं उनसे। हाँ, VAB। सो अब इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इन इलेक्ट्रॉन्स की? Q, हाफ mv स्क्वायर। हाँ, हाफ mv² VAB। ओके, मजा आ रही है? इट्स इक्वल्स टू हाफ mv²। ओके, बात की समझ आ रही है? तो ये इलेक्ट्रॉन तब तक मूव करेंगे जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कब तक एग्जिस्ट करेगा? जब तक वोल्ट एग्जिस्ट करेगी। और वोल्ट कब तक एग्जिस्ट करेगी? जब सर तक जब तक के चार्ज लिए बैटरी चार्ज हाँ, है। जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव प्लेट पे आ जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट पे बहुत सारा पॉजिटिव पड़ा है, हर इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा तो एक चार्ज को क्या करेगा? आपस में न्यूट्रलाइज कर देगा। और न्यूट्रलाइज। चार्ज क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। वोल्ट क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होना है? वो क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। समझ आ रही है? यस सर। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव प्लेट के चार्ज को खत्म कर देंगे तो वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो फिर वायर में इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा ही नहीं, देयर विल बी नो करंट। सो हमने क्या कंक्लूड किया है? इन डीसी, ये हमारे पास डीसी है ना, इन डीसी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड wire. No electric field inside wire means two things. One is no current. आप इसको वाइस वर्सा भी कंसिडर कर सकते हैं, मैंने अभी वाइस वर्सा में एक्सप्लेन किया है। और डेफिनेशन लिख रहा हूं अदर वे अराउंड, राइट? अगर डीसी में वायर में फील्ड नहीं है तो इसका मतलब करंट ही नहीं है। दूसरा क्या मतलब है इसका? दूसरा क्या मतलब है? फ्री चार्जेस आर दूसरा क्या मतलब है? दूसरा, आई गेस वी नीड टू वेट अ लिटिल, राइट? टू और अच्छा, नहीं, मुझे एक बताएं। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है किसी वायर में, राइट, तो इसका क्या मतलब है कि उस वायर में, बताएं ना, जल्दी से बताएं। सर इलेक्ट्रॉन नहीं होल्स हैं। होगा तो करंट नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? इसको अगर मैं लिखूं स्टैटिक केस तो कैसा रहेगा? ये वैसे हमने डिस्कस तो किया है, बट आई डोंट नो व्हाई आप लोग इसमें थोड़े से इंटरेक्टिव नहीं है। अच्छा, अगर हमारे पास डीसी में करंट नहीं है तो उसका क्या मतलब है? कि वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या वायर को आपने क्या किया है? सर न्यूट्रलाइज कर दिया, जितने नो, भी उसके अंदर थे हाँ, इलेक्ट्रॉन्स वो हो नो चुके हैं यूटिलाइज। पोटेंशियल, नो डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। अब देखिए, इस अगर पोटेंशियल डिफरेंस बाय अक्रॉस मींस अक्रॉस द वायर, अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस नहीं है तो उसका क्या मतलब होता है? उसका क्या मतलब होता है? सर VAB इज इक्वल टू 0 होगा। VAB अगर जीरो है तो उसका क्या मतलब है?
चार्ज कितना है, चार्ज 0 है। ओके, प्रोपोर्शनली क्या होना है, चार्ज 0 है, तो इसका मतलब चार्ज भी 0 है। समझ आ रही है? नो? अब चार्ज कब बनता है, रिमेम्बर चार्ज कब बनता है, बताए ना, चार्ज कब बनता है, जब आप क्या प्रोड्यूस करें, क्या प्रोड्यूस करें, सेपरेशन। और जब सेपरेशन, सेपरेशन। हाँ, जब सेपरेशन प्रोड्यूस करेंगे तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो इसका मतलब है कि चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या सेपरेशन नहीं है चार्जेस में, प्लस और माइनस में। समझ आ रही है? यस सर। ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा आप इसको उलट करके सोचें। ये जो हमारा यहाँ पे जो हमारी कंक्लूजन है, इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, अदर वे सोचता हूँ। अगर मेरे पास, मैंने क्या कहा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वायर में, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वायर, इसका क्या मतलब होता है कि नो करंट, जिसका क्या मतलब है, चार्जेस आर 0 और चार्जेस आर स्टेटिक। ऐसे ही है ना, या तो चार्ज रुका हुआ है या चार्जेस क्या है, 0 है। अच्छा, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास नहीं है तो इसका मतलब करंट भी नहीं है। अगर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि करंट हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये हमारा पूरा का पूरा केस किस चीज का बना, कंडक्टर का। ठीक है। अब इसी सिचुएशन को थोड़ा सा हम फ्लिप करते हैं और डाइलेक्ट्रिक पे आ जाते हैं। ठीक है। तो हमने हमने क्या कंक्लूड किया है कि अगर हमारे पास एक वायर है और ये वायर किस चीज की बनी है, ये वायर किस चीज की बनी है, कॉपर की। हाँ कॉपर की, पहले केस में। ये वायर किस चीज की बनी है, प्लास्टिक की। किस चीज की, प्लास्टिक वायर। ठीक है। तो प्लास्टिक हमारे पास क्या होता है, प्लास्टिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक होता है ना। इंसुलेटर होता है सर। हाँ। अच्छा, अब देखिए, अब अगर इसको मैं वोल्ट दे दूं, इसको मैंने क्या किया, वोल्ट दे दिया, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, प्लस, यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सारे प्लस है ना, इस तरफ सारे प्लस है और इस तरफ क्या है, सारे माइनस है। अब मुझे बताए, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा अंदर, नो सर। नो। नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, करेगा सर। इलेक्ट्रिक फील्ड को तो से रास्ते क्योंकि चाहिए। हाँ, रास्ता मिल गया उसको। हाँ, लेकिन लेकिन हमारे पास हमारे पास सही, अंदर, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वेरी गुड। हमारे हाँ, पास क्या है, फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। नहीं है। नहीं है। आपके पास है, कौन कह रहा है मेरे पास नो सर, नहीं है। अच्छा, हमारे पास क्या नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास नहीं है। अब क्या होना है, देखो, कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का खात्मा किस चीज ने किया है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिला फ्री इलेक्ट्रॉन ने रिस्पॉन्ड किया और वो अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू हो मूव गई। भी। अब इस केस में क्या होना है, अब इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन खत्म कर सकता है। तो क्या क्या कंक्लूजन आई है कि हमारे पास डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड तो खत्म ही नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, समझ आ रही है?
यस सर, समझ आ रही है। बहुत मिलती जुलती स्टेटमेंट्स है, लेकिन हल्का सा डिफरेंस है, और वो हल्का सा डिफरेंस बेसिकली दुनिया में जितने भी मटेरियल्स हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा है, एक कंडक्टर और दूसरा डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब देखिए हमारे पास, जब मैंने कॉपर की एग्जांपल ले ली दिस वन, तो कॉपर में हमने क्या कहा कि अगर हम बैटरी अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉपर वायर में अंदर आना शुरू हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आना पसंद नहीं है। इलेक्ट्रॉन सडनली रिएक्ट करते हैं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चलते हैं। अगेंस्ट क्यों चलते हैं? ताकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी वो क्या करे, कलेक्ट करके अपने लिए काइनेटिक एनर्जी बनाए। तो यस इलेक्ट्रॉन सर। तब तक मूव करेंगे जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी खत्म ही नहीं होती। समझ आ रही है? इलेक्ट्रॉन तब तक मूव करते रहेंगे जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी खत्म नहीं होगी। इवेंचुअली इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, चार्जेस क्या हो जाएंगे, स्टैटिक हो जाएंगे, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वायर में एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझ आ रही है बात की? very soon, very soon when you close this switch, वेरी सुन, वेरी सुन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वायर में से। बट जब डाइलेक्ट्रिक होगा वहां पे तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का खात्मा हो सके। तो डाइलेक्ट्रिक में जब तक बैटरी आपने कनेक्ट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो ये बेसिकली दो स्टेटमेंट्स जो है इनको आपने डिफरेंशिएट करना है। Okay, so so this is the big difference between dielectric and insulator. So now, as I said, we went through few concepts here, and then we start, and this chapter we'll start discussing the movement of these electrons. Okay, and we will come to a point when we will move the electron through a wire. समझ आ रही है बात की? बात की समझ आ रही है? Yes, sir. ओके गुड। अब देखिए, अब सपोज मेरे पास क्या है, कॉपर है, मेरे पास क्या है, वायर है, जस्ट फॉर एग्जांपल इट्स अ बिग वायर, राइट? Okay, and now for a while I connect this wire with the battery. This is my positive side, this is negative side. Remember, ऐसा कभी ना करे, बीच में कोई रेजिस्टर जरूर रखे, अदरवाइज वायर आपकी शॉर्ट होनी है, बहुत क्विकली गर्म होनी है, और आपके हाथ जला सकती है या फायर भी लग सकती है, डिपेंडिंग कि ये बैटरी कितनी स्ट्रॉन्गर है, इस बैटरी में कितना चार्ज है। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना फास्टर करंट दौड़ेगा, जितना वोल्ट बैटरी का हाई होगा उतना इलेक्ट्रॉन फास्टर मूव करेगा। तो शॉर्ट तो कर सकते हैं मोमेंटेरियली, रिमेंबर, लेकिन स्पार्किंग भी होगी और बहुत हाई स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे अगर ये रेजिस्टर नहीं है। तो रेजिस्टर जरूर रखें। रेजिस्टर एक बल्ब भी हो सकता है, रिमेंबर, जो ग्लो करता है। ओके, मोटरसाइकिल का बल्ब भी हो सकता है, छोटा सा मोटरसाइकिल का बल्ब अटैच करें, बट सम रेजिस्टर डू अटैच। ओके, समझ आ रही है बात की? मोटरसाइकिल के लाइट कितना होता है, छोटा सी 2-5 वाट का लाइट होता है। ओके, so always attach some resistor, otherwise you will cause huge currents to move. अच्छा, होता क्या है, हमारे पास क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस बेतहाशा है, बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव प्लेट हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज, समझे साइड नेगेटिव है। तो होना क्या है, देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैं 2-3 लाइनें ही बनाता हूँ, ज्यादा लाइनें नहीं बनाता। एज्यूम वी हैव अ लाइन फॉर एवरी चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, वी हैव वन लाइन ऑफ फोर्स फॉर एवरी पॉजिटिव चार्ज, जस्ट एज्यूम दैट, लेकिन मैंने सिर्फ 2 बनाई है।
Now, see, it's a copper. So if it's a copper, there will be many free electrons, many free electrons. Uh, if I take 1 meter cube of copper, I will find 10 to the power 29 free electrons. That's a huge number. Or 10 to 29 is like you have 100 billions of a billion of a billion. 100 billions, billion and billion. What, you take 1 billion, then another billion, then another billion, then another billion, and you take 1 billion times 1 billion. And then you take everything again 1 billion times, and then again 100 times. So these many free electrons are there in 1 meter cube of copper. On average, sometimes little less, sometimes little more, but on average, these much. Okay. Now again also, there are positive. See, there are the atoms of the copper. There are the atoms of the copper जिनसे इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है. There are many atoms जो न्यूक्लियाइज है बेसिकली. जरूरी नहीं है न्यूक्लियाइज हो, पूरा पूरा एटम होता है. ठीक है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी है. ओके, देयर आर many न्यूक्लियाइज. ये पूरा पूरा का डिप्लीटेड कॉपर आयन है. ठीक है, हमारे पास आयंस भी है इसमें. देखिए किस चीज के, कॉपर को हम फुली वाटर से, हाइड्रोक्सिल आयंस के मॉलिक्यूल्स भी है बहुत सारे. कॉपर में हमारे पास आयरन के ट्रेसेस भी पाए जाते हैं, Fe2+ और Fe3+ की फॉर्म में. एल्यूमिनियम के ट्रेसेस भी वैसे मिलते हैं कॉपर में. सो देयर आर many एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन द कॉपर वायर. इसलिए कोशिश की जाती है कि कॉपर को 99.9% प्योर कर दिया जाए, लेकिन स्टिल नोबडी कैन क्लेम दैट 100% प्योर कॉपर. कोई नहीं कर सकता. अच्छा, अब होना क्या है, लुक हियर. जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि बहुत ज्यादा हाइड्रोक्सल आयंस और काफी चीजें रास्ते में पड़ी है. हाइड्रोक्सिल आयंस बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट के बाद हाइड्रोजन एवापोरेट हो गया तो हाइड्रोक्सिल आयन बच गया. राइट. सो देयर आर मेनी थिंग्स. ओके, मेनी थिंग्स. अब देखिए, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा. इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करेगा ना. इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करेगा. सडनली स्ट्राइक कर गया किसी एटम के साथ, किसी मॉलिक्यूल के साथ, किसी दूसरे पार्टिकल के साथ, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर गया. तो ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट किया यहां से जीरो वेलोसिटी के साथ चल पड़ा था. यहां से सपोज v was 0, और जैसे ये स्ट्राइक कर गया तो इसकी वेलोसिटी अगेन कितनी हुई है. इसकी वेलोसिटी अगेन कितनी हुई है. ये इलेक्ट्रॉन इधर भी आ सकता है, बिल्कुल वापस भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर स्लाइड भी कर सकता है. सो इस इलेक्ट्रॉन का कोलिजन के बाद पाथ मालूम करना मुमकिन नहीं है. कोलिजन, जब इलेक्ट्रॉन कोलिजन मारता है किसी दूसरे एटम के साथ, मॉलिक्यूल के साथ, तो उसका आफ्टर कोलिजन पाथ क्या हो जाता है, रैंडम हो जाता है. तो आफ्टर कोलिजन हम वेलोसिटी क्या एज्यूम करेंगे, अगेन कितनी, 0. लेकिन जस्ट बिफोर द कोलिजन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होती है, हम उसको क्या कहेंगे, वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा इसकी वेलोसिटी क्या होनी है, बढ़ जानी. क्योंकि लोग
इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे लेफ्ट की तरफ जाता है, पॉजिटिव प्लेट के साथ डिस्टेंस रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, इस पे कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से इस पे फोर्स ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन हायर काइनेटिक एनर्जी लेने की कोशिश करता है, और हायर काइनेटिक एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ने लगती है, लेकिन वो टकरा जाता है। जब वो टकरा जाता है तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन के साथ? इलेक्ट्रॉन जब टकराता है स्कैटर्ड हो जाता है, रैंडम मोशन, रैंडम रैंडम पाथ है। मोशन। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एज्यूम की जाती है 0 पे। सो जस्ट बिफोर कोलिजन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हाईएस्ट एज्यूम की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जैसे कोलिजन आता है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी रैंडम हो जाती है। ओके, नाउ सपोज मैं इस इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करूं कि रैंडमाइज हो गया, और कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव कर गया, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, राइट? लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन को खाली गैप मिलेगा, अगेन ये बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये वापस अपने उसी डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की अगेंस्ट है, उसमें चलना शुरू कर देता है। बात की समझ आ रही है? जब वो दूसरा कोलिजन लेता है, फिर यस स्कैटर सर। हो जाता है, फिर ये अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन के साथ यही होता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद वो एक कोलिजन, उसके सामने कोलिजन आ जाती है, रैंडमाइज स्कैटर्ड हो जाता है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अगेंस्ट चलना शुरू करता है, इस तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ। इन कोलिजन्स को इफेक्टिवली हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। इस कोलिजन के दौरान क्या होता है? जब दो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड करते हैं, तो उस दौरान क्या बनती है? इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या करता है? लूज करता है। तो दौरान क्या होता है? हीट एनर्जी बनती है। दो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स टकराएंगी तो क्या होगा? हीट एनर्जी बनेगी। यस सर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? ये हीट। अच्छा, थोड़ा सा नॉइज भी होगा ऑफ कोर्स, जब दो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स टकराएंगी नॉइज भी होगा, लेकिन वो नॉइज हमें सुनाई नहीं देता। It's such a small noise. अच्छा, once I was doing an experiment, और उसमें मैंने बहुत गलत काम किया था। उसमें मैंने 800 एम्पेयर का सेल, 2 वोल्ट सेल को क्या किया था? शॉर्ट किया था। I was just looking what happens. वो ब्लास्ट कर सकती थी। I will never recommend to do that, but I did that. और आगे फिर भी सामने आ गया तो मैं करूँगा। एंड आई होल्ड इट, सर अब जब तक मैं उसको हाथ में वायर को रख सकता था, क्योंकि वो गर्म हो रही थी वायर। आवाज नहीं आ रहा। हाँ, तो वो क्या हो गया? नहीं, देखो, आपने जो भी काम करना है कैलकुलेटेड करना है। आपको पता होना चाहिए कि कब इसने बर्न होना है। सो इफ यू हैव, अगर आपके जहन में वायर का गेज है, आपके जहन में बैटरी के वोल्ट्स है जिसको आप शॉर्ट करने जा रहे हो, आपके जहन में बैटरी के एम्पेयर्स है कि उन बैटरी के प्लेट्स पे कितना चार्ज पड़ा होगा, वो जहन में है, तो देन आप सेफली ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अपने वायर की गेज का नहीं पता, कितना करंट उस वायर से दौड़ना है वो नहीं पता, कितना चार्ज उस प्लेट पे एक्सपेक्टेड है वो नहीं पता, कितने वोल्ट की बैटरी है नहीं पता, तो डेफिनेटली कैन नॉट डू दैट। लेकिन इफ यू हैव ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, देन आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हो? एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मैं इस अंदाज से